Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So from today I am starting a new subject and the subject is Introductory Development Economics. Before we start the discussion of this subject, there is a common question which students would keep asking, sir, how economic growth is different from economic development? Or is it that economic growth and economic development are one and the same thing? Now, this year, since Delhi University has changed the subject, changed the syllabus, and they have introduced two separate subjects. One is economic growth and business cycles, and other is introductory development economics. So you have an idea, you have some idea about that. Certainly, these two subjects are different. That is why they have been separately introduced in the syllabus. But till last year, both of these topics were being taught in one subject only, development economics. So students would keep asking, आपके मन में भी सवाल आएगा, how economic growth is different from economic development or are they same thing? So इस लेक्चर में आज मैं सिलेबस स्टार्ट करने से पहले इसी क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगा, that how economic growth and economic development are different or what is meant by economic growth and what is meant by economic development. First of all, when we say economic growth means that we are focused, we are concerned about the quantitative aspects of the economy, like the national income, GDP, GNP, per capita income, investment in the economy, consumption, unemployment. So the quantitative measures are in the main focus. अभी तक मैक्रो की क्लासेस में आप जो पढ़ते आए हैं वो सब यही बातें पढ़ते आए हैं. आपने पहले पढ़ा नेशनल इनकम, आपने पढ़ा मनी सप्लाई कितनी है इकोनॉमी के अंदर, आपने पढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, फिलिप्स कर्व के बारे में, ठीक है. आपने पढ़ा कि आउटपुट कैसे फाइंड करते हैं. तो ये सब चीज़ें, पर कैपिटा इनकम भी फाइंड करके आए थे, इन्वेस्टमेंट भी आपने फंक्शन पढ़ा था, कंजम्पशन भी पढ़ा. तो ये जो क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं ये बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ इन सबको डील करता है. लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लुक्स बियॉन्ड दीज थिंग्स. इनको तो कंसिडर करता ही है बट इट लुक्स बियॉन्ड दीज थिंग्स. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बेसिकली a much wider concept than economic growth. Here we not only consider the income, we not only consider the production, we not only consider the investment, we not only consider the consumption, but we consider other aspects which make human life, which enhances the quality of human life, like whether the people of the country have facilities of education, whether they have facilities of health, whether they live in conditions where there is sanitation, whether they have availability of means of transport, infrastructure is available or not, whether they have freedom, do they have equality in the society or in their families as well. Like there are many aspects which causes deprivations. Like if someone is poor and that poor person cannot avail the facility of education, if education is only in the hands of private sector and they are giving admission solely to those persons who are capable to pay the fee, then the poor people will not get the education. If medical facilities are only in the hands of those people who are giving the service only to those who can pay the fee, then poor people will not be able to avail the facility of the medical facilities. Like there are many aspects. Is there sanitation, clean water is available or not, electricity is available or not, equality is available or not. अगर voting right ऐसे हो जाए that some people can vote but others cannot vote, this category of people can vote but other category of people cannot vote. There are many countries which have these kind of restrictions that okay, these kind of people can vote and these peoples cannot vote. So are these aspects important? Yes, these are important for development economics. So we are not only considering the income, we are also considering the other aspect which enhances the quality of human life. Okay. So that is why I said that economic development is a bit wider concept than economic growth. अब एक एक करके इनको डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं. पहले डेफिनेशन पे आते हैं. देखिए
ये मैंने यहाँ पे जो आपके सामने प्रेजेंटेशन है इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स सब्सक्राइब किया उनको तो वेबसाइट से मिल जाते हैं, और मेरे ख्याल से वीडियो यूट्यूब पे जाने वाला है जैसा मुझे बताया गया था, तो मैं इसका पीडीएफ यूट्यूब पे लगा दूंगा, ठीक है, या हमारी वेबसाइट पे लगा दूंगा, वेबसाइट पे विजिट करके आपको मिल जाएगा वहाँ से, मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको भी मिल जाएगा, वेबसाइट पे मैं पेज पे लगा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? सी, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स in economic growth we are concerned with the measurement of GDP, GNP, per capita income, production, investment, consumption. So these quantitative aspects which increases the level of earning, yeah, which changes the level of earning, ठीक है. Whereas when we consider economic development, we are concerned with all these factors. Certainly we are concerned with income. वो तो कहावत सुनी है आपने, बापू बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये तो बात चलेगी ही. दैट मनी इज इंपॉर्टेंट, इनकम इज इंपॉर्टेंट, वी आर नॉट डिसरिगार्डिंग द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, but here we are considering non-monetary aspects as well. We are considering whether the people of the society have, as I told you, whether they have medical facilities, education facilities, infrastructural facilities, clean water, electricity, sanitation, whether they have rights of equality, whether they have freedom, whether they can participate in the political journey of the country or not. So all these things are, how about the quality of institutions? If you have dispute with someone, where to go? किसी से झगड़ा हो गया तो कहाँ जाओगे? आप सही हैं, सामने वाला गलत है, लेकिन अब आप क्या करें? मारपीट करेंगे क्या? सिविल सोसाइटी में ये तो नहीं हो सकता. तो आपको क्या चाहिए? जस्टिस सिस्टम चाहिए. इंस्टीट्यूशंस वहां पर हैं या नहीं हैं, ठीक है. तो इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी नेट आपके पास अवेलेबल है या नहीं. अगर हम बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उसके बाद हम कमा नहीं सकते हैं, तो हमारे पास सोशल सिक्योरिटी फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं. जो अनएम्प्लॉयड है उनके पास कोई अनएम्प्लॉयड बेनिफिट्स के लिए तरह से कोई चीज़ है या नहीं है. तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स, बहुत सारी बातें हैं. मैं लेक्चर के एंड में इंडिया में कुछ स्कीम्स का जिक्र करूंगा जो हमारी गवर्नमेंट चलाती है. बहुत सारी स्कीम्स है, सबका जिक्र तो नहीं कर सकता. वो जिक्र इसलिए करूंगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में किन बातों की बात करते हैं, कहाँ फोकस होता है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमारी गवर्नमेंट क्या करे, उसका एक ब्रीफ आइडिया आपको मिलेगा. So one thing is clear, that in economic growth we are concerned with the values of national income, production, investment, etc. Whereas in economic development we are also concerned, apart from this, we are also concerned with those aspects which are qualitative in nature, which enhances the quality of human life in that society, right? Definition आप याद रखिएगा प्लीज. अब इनके बारे में, जैसे अगर मेजरमेंट की बात करें तो व्हाट डू वी मेजर इन इकोनॉमिक ग्रोथ? इन इकोनॉमिक ग्रोथ वी मेजर, अगेन आई एम सेइंग दैट वी मेजर national income, GDP, we measure GNP, we measure production, we measure consumption, we measure investment, unemployment rate. Whereas in economic development, these quantitative measures are important. Apart from this, some qualitative measures are also considered, like whether there is social equality, whether there is political stability or political freedom, how is the quality of institutions. तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं. इंडिकेटर्स क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ के? इफ द इकोनॉमी इज हैविंग हाई लेवल्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट, वी से इकोनॉमी इज ग्रोइंग. इफ देयर इज हाई लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट, इकोनॉमी इज ग्रोइंग. If there is low level of unemployment rate, economy is growing. If there is high rate of industrial production, economy is growing. So economic growth has these indicators: GDP, growth rate of GDP, growth rate of per capita GDP, industrial production, unemployment rate. तो ये सब चीज़ें, investment rate, these are the indicators which indicate that economy is growing or not. Whereas when we consider about development of the economy, how is the human life improving? So for this we consider human development index. In development economics we'll study. In development economics we'll study how do we compute human development index. कैसे compute करते हैं, और what is human development index, HDI short form बोलते हैं. What is HDI, how do we compute, ये सब आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग. पॉवर्टी रेट्स क्या हैं? ठीक है, वो कंट्रीज डेवलप्ड होती हैं जिनकी पॉवर्टी रेट्स बहुत कम होते हैं. लिटरेसी रेट्स क्या हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? ठीक है, बर्थ रेट क्या है? डेथ रेट क्या है? एक्सेस टू हेल्थ केयर कितना है लोगों के पास? एक्सेस टू एजुकेशन कितनी है? पॉलिटिकल फ्रीडम कितनी है? ठीक है,
कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसा है। तो ये सब इंडिकेटर्स हैं जो हम लोग कंसिडर करते हैं फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन इसका स्कोप कैसा है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ नैरो कंसेप्ट, इट इज मेनली कंसर्न और सोनली कंसर्न विद द इनकम एस्पेक्ट्स। इनकम को कंसिडर करता है मेनली, इनकम कैसी है लोगों की, जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो, या पर कैपिटा इनकम क्या है, या पर कैपिटा कंजम्पशन क्या है, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इन पर फोकस करता है। जबकि डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। सिर्फ पैसा, अमीर आदमी सुखी नहीं होता, मतलब सिर्फ ये नहीं कह सकते पैसा आने से ही इंसान सुखी हो जाएगा। देयर आर अदर थिंग्स विच पीपल नीड इन देयर लाइफ, whether they have political stability, political freedom, whether they have access to education, whether they have access to health, medical facilities, whether they live in hygienic conditions or not, whether they have access to clean water or not। आप एक बहुत दूर दराज गांव में रहते हैं, वहाँ के सबसे अमीर आदमी हैं आप ही हैं, लेकिन उस गांव में पानी नहीं आता। तो भले कितना पैसा आपके पास हो, पानी आप कहाँ से लाओगे जब पानी उस गांव में नहीं आता, तो आपको कहाँ से मिलेगा। एक्सेस आपके पास इन चीज़ों का है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो इसका बड़ा स्कोप है। ह्यूमन लाइफ को कैसे इन्हेंस किया जाए, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का यही ऑब्जेक्टिव है मेनली। अच्छा, आगे देखिए ज़रा, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज लेकर आती है। आप इनमें से ज़्यादातर पॉलिसीज पहले से पढ़कर आए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। फिस्कल पॉलिसी लेकर आते हैं, अगर आपको जीडीपी इंक्रीज करनी है तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, टैक्सेस कट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक जो मनी सप्लाई बढ़ाता है नेशनल इनकम इंक्रीज करने के लिए। सप्लाई साइड, ये डिमांड साइड पॉलिसीज दोनों केनेशियन इकोनॉमिक्स के अंदर। क्लासिकल में आप पढ़कर आते हैं सप्लाई साइड पॉलिसी। सप्लाई साइड में क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स कट्स करती है, डीरेगुलेशन करती है, इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव देती है कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं। डिमांड साइड में गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो अपनी डिमांड को इंक्रीज करें। सप्लाई साइड में गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव देती है कि वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज करें। बेसिकली सबका पर्पस क्या है, इन सारी पॉलिसीज का पर्पस है नेशनल इनकम को इंक्रीज करना। ऑब्वियसली अलग अलग सिचुएशंस में गवर्नमेंट कभी मॉनेटरी पॉलिसी लगाती है, कभी फिजिकल, कभी सप्लाई साइड, और पॉलिसीज में डिस्कस करता हूँ आपके साथ, लेकिन सिचुएशनल हैं। वो सिचुएशन हम पीछे पढ़कर आए हैं मैक्रो में, अभी हम उस सिचुएशन पे नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, लेकिन वो सब हम वहाँ पढ़कर आए हैं। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करती है। ह्यूमन कैपिटल कैसे बन सकता है, एजुकेशन से बन सकता है। ह्यूमन कैपिटल कैसे बन सकता है, हेल्थ से बन सकता है। आप कितने पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत बीमार हैं, तो वो देश की सेवा कैसे करेंगे। मतलब आप, मैं जो भी काम करता हूँ, ऑब्वियसली मैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता हूँ, ठीक है। एक इंडिविजुअल जो भी काम करता है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है, मगर जब वो काम करता है तो उससे पूरी सोसाइटी को फायदा मिलता है, ठीक है। एक फार्मर जो फसल उगाता है अपने कमाई के लिए उगाता है, मगर उस फसल को उगाने से पूरी सोसाइटी को खाना मिलता है। एक इंडस्ट्रीज जब प्रोडक्शन करता है तो अपने कमाई बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम के लिए प्रोडक्शन करता है, मगर उसके प्रोडक्शन से गुड्स मिलते हैं जो लोग कंज्यूम करते हैं। एक सर्विस प्रोवाइडर अपनी इनकम के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, मगर वो प्रोवाइड करता है तो लोगों को सर्विस मिलती है, ठीक है। तो वो सब, ये सब चीज़ें तब मिल पाएंगी अगर लोगों के पास एजुकेशन होगी, अगर लोगों के पास हेल्थ होगी। तो ह्यूमन कैपिटल में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स लेकर आती है, ओल्ड एज लोगों के लिए, अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए, या जो भी सोसाइटी में वो वर्ग है विच हैज़ बीन लेफ्ट बिहाइंड, जो डिप्राइव्ड है किसी ना किसी वजह से, गवर्नमेंट उसके लिए स्कीम्स लेकर आती है। तो इसको बोलते हैं क्या, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट। फिर गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आती है ताकि जो लॉन्ग टर्म में इकॉनमी है उसमें डेवलपमेंट हो सके, डाइवर्सिफिकेशन हो सके, आपको वो सब चीज़ें मिल सकें जो सोसाइटी में लोगों को चाहिए, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कोई दूर दराज के गांव में रहते, पहले वहाँ तक पहले सड़क पहुंचानी है, तभी तो लोगों को वहाँ पे फैसिलिटीज मिल पाएंगी। सड़क ही नहीं होगी तो सामान जाएगा कैसे। तो डेवलपमेंट में गवर्नमेंट इन चीज़ों पे काम करती है। तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करती है, जो जैसे मैंने बताया आपको, जो लीगल सेटअप है, प्रॉपर्टी राइट का क्लियर जो है, प्रॉपर्टी राइट क्लियर डिफाइंड होने चाहिए। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप के अंदर आती हैं। जैसे आपके पास जुडिशरी सिस्टम है, आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स होते हैं, फिर हाई कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं। तो आपके पास एक लीगल फ्रेमवर्क है। अगर किसी आदमी को किसी तरह से कोई परेशान करता है, कोई उसको कोई दिक्कत है,
तो वो लीगल हेल्प ले सकता है, ठीक है। नहीं तो जंगल राज होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगा, फिर तो डेवलपमेंट कैसे होगी। पैसा होना सब कुछ नहीं है, अगर आप बहुत अमीर हैं लेकिन वहां पे सिक्योर नहीं है जिस जगह पे रहते हैं, तो पैसा भी चला जाएगा हाथ से। तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, इस पे गवर्नमेंट खर्चा करती है, पॉलिसीज बनाती है, लीगल सेटअप करने के लिए, प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन करने के लिए, इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करने के लिए। देखिए, मैं मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूं, अपने समय पे नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने एक बिजनेस सेट किया। अब मैं चाहता हूं मेरे जो बच्चे हैं वो पढ़ें, पैसा है मेरे पास, मैं चाहता हूं बच्चे पढ़े, लेकिन जहां मैं रहता हूं वहां कोई एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई स्कूल नहीं। अब क्या करूं, खाली पैसे से क्या होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये गवर्नमेंट का रोल है, यहां पर आ जाता है इंस्टीट्यूशन सेटअप करना, सिर्फ लीगल नहीं, मेडिकल एड के लिए, एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशनल सेटअप, ये गवर्नमेंट का काम, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज लेकर आती है इनको सेटअप करने के लिए। और क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर आती है जी, ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर देखें तो ट्रेड पॉलिसीज लेकर आती है। देखिए, आप चाहते हैं कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या चाहते हैं, कंट्री की इनकम को इंक्रीज करना, इसके लिए आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं कि जितने ज़्यादा हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी, हमारी कंट्री के लोगों की उतनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी। तो इनकम एस्पेक्ट पे एक ये भी एंगल है जहां पे हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज लेकर आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनकम के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेड तभी हो पाएगा जब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो पाए, कनेक्टिविटी हो लोगों के पास। आप आजकल ऑनलाइन अमेजोन से सामान मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, ब्लिंकिट से मंगाते हैं, जोमेटो से मंगाते हैं, स्विगी से मंगाते हैं, और बहुत सारी दुनिया जहान की ऐप्स हैं जिनसे आप मंगाते हैं, क्योंकि आपके पास वाईफाई फैसिलिटी है, इंटरनेट की फैसिलिटी, तो आप सब सामान मंगा सकते हैं। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की वजह से कितने लोग बिजनेस कर पा रहे हैं। यूपीआई है आज के टाइम पे इंडिया के पास, यूपीआई से, हाँ इंडिया के पास है, कोई तो अगर आप कई लोगों को पता ना हो तो बता दें, इंडिया ने डेवलप किया यूपीआई, ठीक है। तो हमारे पास यूपीआई, बाकी देशों को हम दे रहे हैं, जिनको हम दे रहे हैं उनको मिल रहा है, बाकी के पास नहीं है यूपीआई। तो यूपीआई से कितनी फैसिलिटी है, आप दूर दराज किसी इलाके में किसी सामान खरीदते हैं, उसको पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, तुरंत विद इन फ्यू सेकंड्स पैसे ट्रांसफर हो जाता है, उसको पैसे मिल जाते हैं, आपको गुड्स भेज देता है, ट्रेड हो गया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी की वजह से इनकम एनहांसमेंट हो रही है, ठीक है। ये सब गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आती है ताकि लोगों की इनकम बढ़ सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के दोनों फायदे हैं, एक तो वो डेवलपमेंट में भी काम करता है और ग्रोथ में भी काम करता है। डेवलपमेंट में गवर्नमेंट और पॉलिसीज क्या लेकर आ सकती है, जैसे सोशल सिक्योरिटी, मैंने बताया था, जो ओल्ड एज हैं उनके लिए ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, कोई अगर हैंडीकैप है तो उसको कुछ गवर्नमेंट एड करती है, कोई अनएम्प्लॉयड है उसको गवर्नमेंट एड करती है। तो किसी भी तरह से अगर सोसाइटी में एक सेक्शन ऐसा है जो डिप्राइव्ड है, जो किसी ना किसी वजह से पीछे छूट रहा है, तो उसको 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 हैंड होल्डिंग, इसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज लेकर आती है। और लास्ट में गवर्नमेंट कोशिश करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल क्या होगा, जहाँ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो सके। रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट फोकस करती है, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे गवर्नमेंट फोकस करती है। देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और अक्टूबर से लेकर और मार्च तक का जो समय है, ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी गैस के चैम्बर में रह रहे हैं जहाँ पर सांस लेना भी दूभर हो जाता है। दिल्ली और इसके आसपास के जो लोग हैं इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो समय होता है, हर साल ऐसा होता है जहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होती है। जिन लोगों को ज़रा से भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उनके लिए तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो एनवायरनमेंट की जो टेक केयर है, ये भी डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है जी, क्योंकि हम बात यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ की कर रहे हैं। वो कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है, उसका टेक केयर करना डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का काम है। इसमें आप एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आती है, ताकि अगर इनकम तो देखिए पहले चाहिए, इनकम तो पहले चाहिए ही, तो इनकम को भी गवर्नमेंट स्टेबलाइज करना चाहती है। तो ये सब पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट लेकर आती है। तो आपने डेफिनेशन पढ़ ली मेरे साथ, आपने मेजरमेंट पढ़ लिया, आपने स्कोप पढ़ लिया, आपने पढ़ लिए पॉलिसीज क्या हैं, ठीक है। तो अब नटशेल में अगर बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ का फोकस जो है वो शॉर्ट टर्म इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कि आप इस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम को कितना इंक्रीज करना चाहते हैं। डेवलपमेंट जो है एक विजन लेके चल रहा है कि इनकम तो बढ़नी ही चाहिए लॉन्ग टर्म में, साथ साथ जो बाकी फैसिलिटीज हैं जो ह्यूमन लाइफ को एनहेंस करती हैं
उनका भी इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये कंपैरिजन हो गया। अब मैंने आपको कहा था कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारी स्कीम्स है, मैं सबका जिक्र तो यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, कुछ बातों का जिक्र कर देता हूँ। ठीक है, मैंने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है, क्योंकि अभी मेरे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, इसलिए ब्रीफली डिस्कस किया है। जब मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर इन बातों को डिटेल में डिस्कस करूँगा आपके साथ। ठीक है, जो सब्जेक्ट आएगा इंडियन इकोनॉमी का, वहाँ डिटेल में डिस्कशन का होगा, जो जो स्कीम्स हमारे कोर्स के अंदर आएंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए कुछ स्कीम्स है, जैसे मैंने वापस यहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोसेस लिख दिया, इसका मतलब डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है, कोई कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। जैसे एक कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन क्या होता है, जैसे गर्ल चाइल्ड है, बॉय चाइल्ड है, पेरेंट्स कह रहे हैं बॉय चाइल्ड ट्यूशन पढ़ने जाना है, बेटा जा, चला जा, दूसरे गांव में चला जा, दूसरे शहर चला जा, रात में भी चला जा, दिन में भी चला जा। गर्ल चाइल्ड है, पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं बेटा, रात में नहीं जाने देंगे, दूसरे शहर नहीं जाने देंगे, ठीक है, या ट्यूशन पढ़ने ही नहीं जाने देंगे। पैसे कम है तो पहले गर्ल चाइल्ड की जगह पहले बॉय चाइल्ड को पढ़ाएंगे, पैसे कम है तो पहले खाना मेल्स को मिलेगा, कुछ बच गया तो फीमेल्स को मिलेगा। ये सच्चाई है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो इनइक्वालिटीज हैं ये डेप्रीवेशन लेकर आती हैं। मान लीजिए फैमिली के पास पैसा तो है, पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन बॉय चाइल्ड को बाहर भेजने को तैयार हैं, गर्ल चाइल्ड को बाहर भेजने से मना कर देते हैं, तो ये डेप्रीवेशन है। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब यह है कि पीपल शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेप्रीवेशंस। अब इसलिए गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या स्कीम्स लेकर आती है, कुछ स्कीम्स के मैं नाम देता हूँ। जैसे अंत्योदय अन्न योजना, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सब्सिडाइज रेट्स पे फूड प्रोवाइड करती है उन लोगों को जिनके पास इनकम बहुत कम है, खाने के लिए अनाज नहीं पहुंच पाता है, या उनकी अर्निंग इतनी है कि खाना उनको प्रॉपरली मिल सके, तो गवर्नमेंट उनके लिए स्कीम लेकर आती है। एक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब शहरों में तो सड़कें बन गई हैं, लेकिन गांवों तक सड़कों का नेटवर्क, रोड्स का नेटवर्क होना चाहिए, उसके इस स्कीम के अंडर उसमें काम होता है, रोड्स की डेवलपमेंट होती है, मॉडर्नाइजेशन होता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मैंने कहा था आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लोगों के पास अर्निंग फैसिलिटी, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, अर्निंग फैसिलिटी होनी चाहिए, जब जो काम करना चाहिए उसको जॉब मिल जाए। तो यहाँ पे इस स्कीम में गवर्नमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है। अगर आप अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प भी करती है, थोड़ा टेक्निकल नो हाउ में भी हेल्प करती है प्रधानमंत्री रोजगार योजना में। और दूसरा एक और देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो जो रूरल सेक्टर है वहाँ पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को कुछ उनके लिए कुछ अलग से एडिशनल फंड्स देती है, ताकि वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन या फिर लोगों के जो घर हैं उन सब के डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट पैसा खर्च करे। एक स्पेशल स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो गरीब लोगों को घर बनवा के देती है। एक है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखिए इसमें क्या है कि जो एक तरह से कह सकते हैं पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जो पुअर हैं, जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के लिए पैसा नहीं है, देखिए एजुकेशन और जो हेल्थ है, दे हैव अ हाई इनकम इलास्टिसिटी। इसका मतलब ये है कि जब आदमी के पास पैसा कम होता है तो डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करता, बीमार होगा डॉक्टर पे नहीं जाएगा। आदमी जब उसमें पैसा कम होगा तो वो पढ़ने नहीं जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं एजुकेशन और हेल्थ, ये इनकम कम होने पर सबसे पहले इन्हीं पे असर पड़ता है। तो हेल्थ को लेकर गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है, कौन सी, प्राइम मिनिस्टर या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, और इसकी एलिजिबिलिटी कुछ ऐसी है कि जो गरीब लोग हैं सबके लिए ये अवेलेबल है। तो यानी इस तरह की कंडीशन है कि 50% जो कंट्री का जो लोअर 50% लोग हैं वो ईजिली इसको अवेल कर सकते हैं। जो जिनका ऑलरेडी पैसा है और सारे रिसोर्सेज हैं उनको तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, खैर वो तो खुद अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा लेते हैं। लेकिन अदरवाइज लोगों के पास अगर नहीं पैसा है तो ये स्कीम गवर्नमेंट ने दी है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, क्लीन वाटर, ऐसे सबकी स्कीम्स हैं। मैं नाम लूँगा तो फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, और क्योंकि मेरा आज का वो एस्पेक्ट भी नहीं था, ये बस मैंने ये चीज़ें एंड में जोड़ी ताकि आपको ये नज़र आ सके कि जैसे हम कहते हैं गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए, तो क्या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर आई है आपको ध्यान में रहे।
तो जब एग्जाम्पल देने की बात अगर आ जाए तो ये इनमें से कुछ का एग्जाम्पल वहाँ पे लिख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी बनाई है, इनमें से कुछ का नाम आप वहाँ पे जिक्र कर सकते हैं, ब्रीफली वहाँ पे लिख सकते हैं। डिटेल डिस्कशन इसका इंडियन इकॉनमी में होगा, वो तो जब इंडियन इकॉनमी आप पढ़ेंगे, अभी तो सेमेस्टर 5 में आपके पास इंडियन इकॉनमी अभी तो नहीं है, कि जब आप इंडियन इकॉनमी पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में डिस्कशन इसका होगा। राइट तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ अब एक अलग सब्जेक्ट बनकर आ गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल्स, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक अलग सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। अब से पहले ये एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था, एक साथ एक ही सब्जेक्ट के अंदर दोनों चीज़ें पढ़ाई जाती थी, अब अलग अलग है। तो होपफुली ये बातें आप लोग समझ गए हैं। फिर भी कोई क्वेरी आपके मन में हो, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे डाउट सेशन में आके डिस्कस कर सकते हैं। और अगर वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, कोई बात पूछना चाहें, तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे गिवन है, आप व्हाट्सअप करके अपनी बात पूछ सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू।